Hello everyone, welcome to lecture 4 of the percentage chapter. In this question it is given that the population of a town is 1,89,000. 4 by 9 of them are males and rest are females. 50% of males are married. Then we have to find percentage of married population and second percentage of married female. So in this type of question, the approach to solve is to just neglect this portion. What I want to say is just neglect 1,89,000. Let me show you by solving this question that this data is of no use. In fact, you will end up wasting some 2 or 3 minutes by using this value and calculating your answer. Without this value you can also reach to your answer, so it's better to save some time and utilize your time in the examination hall. So let's proceed with the solution. So since the population of town is this much and 4 by 9 of, so let's assume that people in the town is 9 unit and males, here it is given 4 by 9 of them are males. It means that out of 9, 4 are males, so 4 are males. So the number of females would be obviously 5. So 4 unit of males, 5 unit of females, we will get 9 unit of total number of population. Now it is given that 50% of males are married, so the total number of males are 4 unit, so 50% is 2. So 2 male are married, 2 male are married, 2 male are married. So if they are married, they will be married to 2 female. Now the first question is find the percentage of married population. Married population की परसेंटेज कितनी होगी? सो मैरिड कितने हैं? 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, 4, और टोटल नंबर पॉपुलेशन है हमारा 9 इंटू 100. सो 1 by 9 इंटू 100 की वैल्यू हमें पता है 11.11%. सो दिस विल गिव अस 44.44%. This is the answer of first part, that is percentage of married population. Now the second part is percentage of married female. So married female are 2. Married female are 2 and total number of female are 5. It means 2 out of 5 is 2 out of 5 females are married. So 2 by 5 into 100. 20 into 2 is 40%. So 40% females are married. This is the answer for the second part. In this question, it is given that a laborer works 60 hours per week and he earns 2400 as wages. If his per hour wages is increased by 40% and duration of work reduced by 16 combination 2 by 3%, find the percentage change in his income. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेबर 60 आवर पर वीक काम कर रहा है और उसकी जो अर्निंग हो रही है काम करने के बाद वो 2400 रुपये हो रही है. अगर उसकी पर आवर की वेजेज जो हैं, पर आवर की जो कमाई है वो अगर 40% से बढ़ा दी जाए और उसका जो काम करने का ड्यूरेशन है उसको 16 कॉम्बिनेशन 2 by 3% से कम कर दिए जाए तो उसके इनकम में कितने परसेंट की चेंजेज होगी. सो जो इनिशियल ड्यूरेशन है काम करने का वो हमें दिया हुआ है 60 आवर पर वीक. इनिशियल ड्यूरेशन दिया हुआ है, राइट. इनिशियल ड्यूरेशन हमें 60 आवर पर वीक दिया हुआ है और इनिशियल
वेज जो है पर आवर, वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, डेट इज 2400 अपॉन 60. सो दिस वुड गिव 40. सो ये इनिशियल वेजेज हो गया पर आवर का, और ये इनिशियल ड्यूरेशन हो गया 60 आवर पर वीक. नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो पर आवर वेजेज हैं वो 40% से बढ़ा दी गई हैं, और ड्यूरेशन जो है वो 16 कॉम्बिनेशन 2/3% से घटा दी गई हैं. तो ड्यूरेशन अगर 16 कॉम्बिनेशन 2/3 से घटाई जाएंगी तो नई ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 16 कॉम्बिनेशन 2/3% की वैल्यू होती है 1/6. इफ it is decreased by this much, so the new duration would be 60 into 5/6, that is 50 hour per week, right? Similarly wages जो हमने कैलकुलेट किया है वो 40 कैलकुलेट किया है यहाँ पे. पर आवर वेजेज जो है वो 40 है. सो पर आवर वेजेज चूँकि 40% से इंक्रीज कर जा रहा है, सो ओल्ड वाला है हमारा 40 और इंक्रीज कर रहा है 40% से, तो 40% से इंक्रीज का मतलब ये हो गया कि दिस इज गोना टू बी मल्टीप्लाइड बाई 7/5. सो न्यू वेज पर आवर वुड बी 56. नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इन हिज इनकम. सो इनिशियल इनकम जो थी हमारी वो थी 2400, और न्यू इनकम जो हमारी बन जाएगी वो 56 इंटू 50. दिस वुड गिव अस 2800. ये न्यू वेज बनेगी. नाउ अब क्वेश्चन आसान हो गया. परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 400. द डिफरेंस वुड बी 400 over 2400 into 100. So the answer would be 16.66%. Here in this question it is given that amount of work in factory is increased by 50%. By what percent is it necessary to increase the number of workers to complete the work in previous time if the productivity of new labor is 25% more than the previous labor. कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में जो काम का अमाउंट है वो 50% से बढ़ गया, मतलब जो काम हम पहले कर रहे थे अब उससे 50% हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा. तो कह रहा है कि कितने परसेंट से हम अपने वर्कर्स की संख्या को बढ़ा दें ताकि वो जो काम है वो उतने ही टाइम पर समाप्त हो जाए जितने की पहले टाइम पे हो रही थी. जबकि एक कंडीशन और दिया हुआ है कि जो नए लेबर्स हैं, जो नए लेबर आएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी पहले वाले लेबर से 25% ज़्यादा होगी. तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर काम का अमाउंट बढ़ा दिया गया है तो लेबर्स की प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तभी वो उसी ड्यूरेशन में काम हमारा कंप्लीट होगा. अगर काम का लोड बढ़ा दिया जाता बट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई गई होती लेबर्स की, तो वो काम उसी टाइम पर एंड नहीं करता, उसी टाइम पे फिनिश नहीं होता कभी भी. तो एक फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है. वर्क जो होता है वो होता है नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाई देयर प्रोडक्टिविटी. ये होता है हमारा वर्क, राइट. सो सपोज जो हमें काम करना है, बहुत इजी अप्रोच बताऊंगा. जो हमें काम करना है वो काम जो है, लेट्स अज्यूम कि वो 100 यूनिट ऑफ वर्क है जो हमें फिनिश करना है.
In this question, it is given that amount of work in factory is increased by 50%. By what percent is it necessary to increase the number of workers to complete the work in previous time if productivity of new labor is 25% more than the previous labor? किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जो काम की अमाउंट है, जो काम का अमाउंट है वो 50% से बढ़ा दिया गया है. सो अगर प्रोडक्टिविटी लेबर की 25% से बढ़ा दी जाए तो कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमें रिक्वायर होंगे, इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी है. क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है. एक हमें सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि वर्क जो होता है वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स इनटू प्रोडक्टिविटी. नंबर ऑफ़ वर्कर्स इनटू प्रोडक्टिविटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमें वर्क की वैल्यू देता है. सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स 100 है. टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स 100 है. प्रोडक्टिविटी जो है वो 25% से नए लेबर की इंक्रीज़ कर जा रही है. 25% मीन्स 1/4 से इंक्रीज़ कर रही है. इट मीन्स 5/4. सो न्यू वर्सेस ओल्ड प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो आएगा वो 5:4 आएगा. मतलब न्यू प्रोडक्टिविटी 5 होगी यदि ओल्ड प्रोडक्टिविटी 4 है. सो वर्क हमारा क्या होगा, ओल्ड इनिशियल वर्क कितना होगा, नंबर ऑफ़ वर्कर्स इनटू प्रोडक्टिविटी. सो नंबर ऑफ़ वर्कर्स 100 है और प्रोडक्टिविटी हमारी 4 है. सो जो काम है वो 400 यूनिट है, परफॉर्म किया गया इनिशियली जो काम है वो 400 यूनिट परफॉर्म किया गया. अब कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क इन फैक्ट्री इज़ इंक्रीज बाई 50%. अब ये जो हमारा वर्क है ये 50% से बढ़ गया है. तो 400 इंटू 50% की वैल्यू होती है 1/2 और इफ इट इज़ इंक्रीज बाई 1/2 इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3/2. नाउ द न्यू वर्क इज़ 600. अब ये काम हमें फिनिश करना है 600. लेकिन ये काम जो हमें फिनिश करना है ये करना है हमें इस प्रोडक्टिविटी वाले वर्कर्स के द्वारा जिनकी प्रोडक्टिविटी अब 5 है. सो नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो होंगे रिक्वायर्ड होंगे, जो नए वाले, जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे नए वाले वो हो जाएंगे 600 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 120. सो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि न्यू नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो 120 हो रहा है, जबकि ओल्ड नंबर ऑफ़ वर्कर जो हमने एज्यूम किया था वो 100 किया था. नाउ अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया. हमसे पूछ रहा था कि बाय व्हाट परसेंट इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क. सो नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने से इंक्रीज़ किए, तो पहले 100 थे, अभी वो बढ़ के 120 हो गए. सो 20 की इंक्रीमेंट हुई है ओवर 100. दैट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ़ वर्कर इज़ 20%. In this question, it is given that if income tax increased by 19%, then net income reduced by 6%. Find the rate of income tax. कह रहा है कि इनकम टैक्स अगर 19% से बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो नेट इनकम है वो 6% से कम हो जाता है. तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है. बहुत आसान है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसके पीछे हमें समझना होगा कि नेट इनकम क्या होता है. किसी भी इनकम में से जो टैक्स कट जाता है उसके बाद की जो वैल्यू बचती है वो होती है हमारी नेट इनकम. टैक्स कटने के बाद जो पैसा हमें मिलता है वो हमारी इनकम होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी कुछ सैलरी डिफाइन है और उस पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टैक्स लग जाता है, तो टैक्स में पैसा कटने के बाद जो हमें
रिमेनिंग अमाउंट मिलता है वो हमारी नेट इनकम होती है। बस यही चीज़ इसमें समझने वाली है। तो गौर करने की बात ये है कि जो इनकम वाला पोर्शन है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। इनकम जो हमें प्राप्त हो रहा है किसी कंपनी से या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो इनकम जो होगा वो टैक्स और प्लस नेट इनकम जोड़ के मिलता है। जो इनकम की वैल्यू आती है वो टैक्स और प्लस नेट इनकम दोनों के एडिशन को हम इनकम कहते हैं और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वाला पोर्शन। तो गौर करने की बात ये है कि इनकम टैक्स जो है वो 19% से, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 19% से बढ़ता है तो हमारा नेट इनकम जो है वो 6% से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स का जो 19% होगा, टैक्स का जो 19% होगा वो बराबर होगा नेट इनकम के 6% के। टैक्स का जो 19% जो पार्ट आ रहा है, क्योंकि टैक्स का, इनकम टैक्स का 19% जो होगा वही तो इंक्रीज हो जा रहा है, तो टैक्स का जो 19% है वो और नेट इनकम में जो ड्रॉप हो रही है 6% की, वो दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। चीज़ें अब आसान हो गई। टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, वो आ जाएगा 6/19। 6/19 यानी कि टैक्स जो है हमारा 6 यूनिट है और नेट इनकम हमारा 19 यूनिट है। टैक्स हमारा 6 यूनिट है और नेट इनकम हमारा 19 यूनिट है। सो इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टैक्स प्लस नेट इनकम, टैक्स प्लस नेट इनकम डेट इज़ 19 प्लस 6 25 यूनिट जो है हमारी वो इनकम हो जाएगी और नेट इनकम 19 है और टैक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 यूनिट। हमें कैलकुलेट करना है कि फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स की वैल्यू आ रही है 6, इनकम है 25 इंटू 100, ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, 6 4 जा 24। सो द रेट ऑफ इनकम टैक्स होगा वो हमारा 24% होगा। दिस इज़ द आंसर।